اور ہم سب نے ایک کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہمارا اگر دین ہے تو ایک ہے، ہمارا اگر اختلاف ہے تو ایک ہے، ہمارا کوئی موقف ہے تو ایک ہے، ہماری کوئی کیفیات ہے تو سب کی کیفیات ہے، ہمارے عقائد ایک ہے، ہمارے لیے احکامات ایک ہے، ہمارے تمام احوال ایک ہے. ہدایت دینے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محض اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو ہمارا آپس کا اختلاف ہے یہ اختلاف تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تقوی کا معنی آپ لوگ سمجھتے ہو. تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا. یہ کوشش اگر ہم سب کی ہوگی تو یہ کوشش جو ہے سب سے کیا ہے، یہ درست ہے. ابھی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس آیت مبارکہ میں یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے. عزیز الحکیم، اس سے کوئی زبردست نہیں ہے، اس سے کوئی حکمت والا نہیں ہے. حکمت والا ہے تو وہی ہے، زور والا ہے تو وہی ہے. پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کتاب ہے کہ بے شک تجھ پر یہ کتاب ہم نے اتاری ہے. تو آپ کا کام کیا ہے، آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ یہ خطاب پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مخلصا لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر دو. دین کو خالص کر دو. جو دین ہے، جب ہم سب ماننے والے ہیں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ماننے والے ہیں، تو اس میں مطلب ہے کہ یہ بات نہ رہی، یہ بات جو ہے یہ بریلیوں کی ہے، یہ اہل دیوبند کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے. یہ بات بالکل خارج کر دینی چاہیے، یہ غلط ہے. بات ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اللہ راضی ہو جائے. کیونکہ بعض تحویلات اور بعض کیفیات میں ہم پڑھیں گے تو کبھی بھی دین جو ہے خالص نہیں ہوگا. آج ہم دین میں کچھ نئی باتیں بتائیں گے، کل آنے والے کچھ نئی باتیں، کوئی آنے والے کوئی وہ تو قانون کا درجہ نہیں رکھتی ہے. دین ایک دین ہے. اگر کوئی کیفیات ہے تو دین کے اندر ہے. قانون ہے تو اس دین کا قانون بھی ہے، حد مقرر ہے. ہر چیز کا حد جو کیا ہے، وہ مقرر ہے. اگر کوئی کیفیات ہے تو اس کا حوالہ بھی دین کے اندر موجود ہے. احوال ہے تو وہ بھی دین کے اندر ہے، دنیوی امور ہے تو وہ بھی دین کے اندر ہے، اخروی بھی ہے تو دین کے اندر موجود ہے. جو مشابہات والی بات ہے اس میں مطلب کہ جو علماء کرام ہے، محدثین ہے، جو تمام کے احوال ہے، وہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ ایک نمونہ ہے. ان کو ہم ضرور پڑھیں گے، حق تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمان ہے، کہتے ہیں کہ جب میرے قول کے مقابلے میں کوئی آپ کو صحیح حدیث ملے، کوئی صحیح روایت ملے تو اس پر عمل کرو. ہوا مذہبی، وہ میرا مذہب ہے. تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اچھا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ بات جو نہیں تقویٰ پر موقوف ہے.
ये आपको क्या था? ये तकवा था, तकवा। अब अगर हम आपस में ये कहें कि मेरी तो ये बात है, अगर ये आपको कबूल हो तो ठीक है, और अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। आप कहेंगे अगर आपकी ये बात है तो अल्लाह ताला आपको हिदायत दे रहे, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो शक से बिल्कुल बाहर बात है। हिदायत देना तो अल्लाह ताला की ज़ात है, कोई और हिदायत देने वाला है नहीं है। ये कि दिल के अंदर जो है ना कोई ऐसी बात मख्फी ना हो, दिल के अंदर कोई ऐसी बात मख्फी ना हो जिस पर अल्लाह ताला क्या हो, वो नाराज हो। खुद मैं लागिर हेडक्वार्टर में कराची में था, तो एक दिन का मामला मैं आप लोगों को बताता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। ये कातिबीन जो लिख रहे हैं, सियासत भी दुरुस्त है, सब कुछ दुरुस्त है, तमाम मामलात जो है दीन के अंदर मौजूद है। हदबंदी है, अगर हदबंदी नहीं है तो फिर बरेलियों में, मुशरिकीन में और हमारा फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क जो है दरमियान में नजर आता है। तो जहन में ये बात आई कि जो आज की रात है, आज की रात जो है मैंने मरना है, आज की रात मेरे मरना है, और मुझे यकीन था कि मैंने मरना है। तो यकीन से मैं मस्जिद में चला गया, यकीन से मैं मस्जिद में चला गया, तो किताबुल्लाह की तिलावत शुरू कर दी। एक आयत मुबारका है, कभी पूछोगे तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। जब उस आयत मुबारका पर मैं पहुंचा तो वो आयत ज़बान के ऊपर जारी हो गई, ज़बान के ऊपर जारी हो गई, हत्ता कि कैफियत ये बनी कि मेरा होश बिल्कुल ख़त्म हो गया कि वाकई आज आपने मरना है। तो मैं मतलब ये तो मेरा अपनी राय थी ना कि पूरी ज़िंदगी जो आप बैठ कर दुआ मांगते हो, तो आज खड़े हो जाना, खड़े होकर दुआ मांगे। तो ज़बान बिल्कुल बेइख्तियार हो गई। कभी कैफियत बन जाती है, ज़बान जो है बेइख्तियार हो जाती है। तो ये मुंह इतना खोल गया, इतने जोर से आवाज़ निकल रही मुंह से कि पता नहीं आवाज़ जो कहाँ कहाँ तक पहुँच गई है, अभी आवाज़ बंद नहीं हो रही है। रब की कसम, ये दोनों पाँव जो है ये ज़मीन मस्जिद में बिल्कुल यूं चस्पान, जिस तरह लोहा के साथ चस्पा होता है। मैं पाँव को यूं मूवमेंट देता हूँ, हरकत देता हूँ, पाँव जो है बिल्कुल हिल नहीं रहे। तो जब वो ब्लड सर्कुलेशन जब जिस्म में रुका तो मैं गिर गया मस्जिद में। गिरने के साथ जो है बिल्कुल आवाज़ क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अभी बिल्कुल मतलब है कि जब मेरा सीना बिल्कुल ठंड हो गई, मैं मुतमईन हो गई हूँ। कभी मौत जान निकले तो मतलब कि मैं बहुत मुतमईन थे। तकरीबन मतलब कि 25 मिनट तक मतलब कि जो है मुझे होश हो कि आप तो ठीक ठाक हुए। 15 दिन कैफियत ऐसी रही कि खाना जो दिल नहीं चाह रहा है, खाना दिल नहीं चाह रहा है। इस तरह काफ़ी वाक़यात जो मेरे अपने साथ गुजरे, काफ़ी वाक़यात गुजरे। तो जो तकवा का बुनियाद है इसमें कमी बेशी होती है, जो तकवा की बुनियाद है इसमें कमी बेशी होती है। ये कि इससे दिन को ख़तरात ना हो, दिन का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, ये डिसबैंड ना हो। ऐसा कोई फेल इन्फियाल हमारे से सातिर ना हो कि उससे दीन को नुकसान हो। क्योंकि काफ़ी ऐसे अमाल हैं हमारे कि मतलब कि फिर बिल्कुल बरीलू जैसे हैं। तो इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा और उनका आपस में इख्तिलाफ ज़रूर है, हमारे आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारी तो बात की बात ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारा अकीदा भी एक है, तौहीद भी एक है, किताबुल्लाह भी एक है, पैगंबर भी एक, सब कुछ एक है। इसके दायरे के अंदर जो भी बात होगी है, दायरे के अंदर जो भी बात होगी वो हमारे लिए क्या है, वो दलील है और हुज्जत की हैसियत रखती है। वो हकीकत में क्या है, हैसियत है। ये तो काफ़ी वाक़यात जो मेरे साथ भी रहे हैं। मैं बहुत बड़ा वली हूँ, मैं लिख गया। तो ये अहवाल जो नहीं सब लोगों के लिए नहीं है। इसका मामला जो है मेरे ज़ात के साथ है। तो ये तो बुखारी शरीफ की एक मशहूर हदीस भी है कि ईमान जो है ना ये कम हो जाता है और बढ़ भी जाते हैं। तो अमाल से नहीं, बल्कि अमाल ऐसे ना हो कि उससे इस्लाम को ख़तरा हो, उससे दीन को ख़तरा हो, दीन का निज़ाम डिसबैंड हो। क्योंकि आज हम कोई अपनी तरफ से कोई इजाफा करेंगे तो आने वाले भी इजाफा करेंगे, उससे आने वाले भी इजाफा करेंगे, आने तो दीन को उससे क्या होता है, ख़तरा होता है। तो मतलब कि वलीउल्लाह जो कहते हैं जायज़ नहीं, तो जायज़ और नाजायज़ ये बात भी इस्लाम से नहीं लेनी है।
तमाम अहकामात जो है, हमारे तमाम उमूर जो है, तमाम उमूर का मामला जो है अपने एक दायरे के अंदर जो है सर को इससे बाहर नहीं। तो ये अकीदा जो है मैं कहता हूँ ये देवबंद का भी है और ये अहले हदीस के भी है और ये सब जो कलमा पढ़ने के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये सब का ये अकीदा है। एक बात तो ऐसी है कि मतलब कि मैं लागिरा 56 नहीं बटानी सियालकोट में जन्म में मतलब ये खुतबा दे रहा था, तो उसमें जब एक आयत मैंने पढ़ी तो उसमें काफ़ी मतलब कि बरेलवी हजरात और शिया हजरात भी थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है इसने मौलवी साहब ने बिल्कुल पंचतन की बात ही नहीं की, पंचतन की बात ही नहीं किया, इसमें तो अली अलैहिस्सलाम की बात ही नहीं की है। तो भाई बात सुनो, इसमें मतलब कि जो अली अलैहिस्सलाम है, अली अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, ये दिन तो बाहर है, ये दरियाब है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर, उनके लिए बाहर भी एक दलील है। ओ यार ये दिन जो नहीं बाहर है, बाहर जरूर बाहर है, समझने बहुत मुश्किल है, बल्कि बाहर भी है, बल्कि वो एक हुदूद के अंदर है, क्योंकि जब वो हदबंदी वाली बात खत्म हो जाएगी तो हर आदमी जो हद से गुजरने की कोशिश करेगा, हर आदमी जो हद से गुजरने की कोशिश करेगा। जी मामला ऐसा नहीं रहेगा, बात बात है इंशाल्लाह। ये तो बयान शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, सुनने के लिए पुरानी बातें ये एक आप भाई तो कह रहे थे कि सुनने के लिए आज हम आए, ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपने पूरा बयान शुरू कर दिया। ठीक है, नहीं ये बात नहीं है, जो भी दलील है पॉइंट टू पॉइंट बात करें, इस तरह नहीं वक्त जाया ना करें। पॉइंट बात है, अगर आप लोगों के पास आप उस दिन आए 2.5-3 घंटे आपने बहस की, 4-5-6 महीने बाद आप आए हैं, अब आपने फिर वो जो है ना बात पे बात वो करें जो असूली है, जिसके ऊपर एतराज है, पूरा आपने लेक्चर शुरू कर दिया। खैर है, कोई बात नहीं, कोई लेक्चर की बात नहीं, हम अपने लेक्चर को वापस ले रहे थे, मतलब ये लेक्चर समझने वाली बात है। एक बात कहूंगा मैं, हाँ कहेंगे, पहले आपने जिस तरह कहा ना कि कलमा भी एक है, दीन आपने कहा कि ये बात करनी चाहिए बरेलवी, ये बरेलवी की बात है, ये नहीं कहना चाहिए सर, ये देवबंदी की बात है। फिर आखिर में आपने कहा कि ये बात बरेलवियों की है, हमारी इनके साथ मुशाबित नहीं होनी चाहिए, तो ये बात में तारुफ हो गया, तो ये बात हमें समझ नहीं आती। तो खैर उसने ज़हन रखते हैं कि आपने गलत बात नहीं की, लेकिन इसका मतलब भी समझा, एक तो कहते हैं बरेलवियों के ये सब चीज़ें मुश्तरका होनी चाहिए, दूसरा कहते हैं ये बरेलवियों के साथ हमारी मुशाबित नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर यूं है, ये इसका मतलब है कि हमारे में और उनमें फर्क होना चाहिए, क्योंकि उनको हम कहते हैं मुशरिक, उन्हीं को हम मुशरिक कहते हैं, तो हमारा उनका आपस में फर्क है, जरूर फर्क है। बात ये कि जो अहवाल कैफियत है, जो कुछ भी इस्लाम के दायरे के अंदर हो, दलील पेश कर हम ले लेंगे। चलें बोले जी आप, और किसी भी किताब से रेफरेंस दे दे, हवाले दे दे, खुद पॉइंट की बात होगी, फिर आप लिखना, हम लिखेंगे किताब हवाला, उसे लिखेंगे, जो भी लिखेंगे किताब हवाला जो भी ठीक है। आप लोगों की बात तख्फा पर मबनी, आप लोग